Good morning, students. How you all? I hope you all are fine. Please stay at home and stay safe. Actually, as you all know that we are going to study the third chapter, chapter 3. And this is about two stories about flying. This is the title of the chapter, two stories about flying. And in this chapter consists of two stories. The first one is his first flight, and the second one is Black Aeroplane. This chapter consists of two stories, and the first one is his first flight, and the second one is Black Aeroplane. First of all, I shall discuss the first chapter. The first title of this chapter is First Flight. As you all know that it's your book name is First Flight. So don't get confused. It's about a chapter we are going to study. Going to see why this chapter has been given the title First Flight. Flight means होता है उड़ान जो होता है to fly. And this chapter is all about a bird named Seagull. This chapter is all about a bird named Seagull, and he was much afraid of flying. The whole chapter revolved around its flying, and he always thought of negative feelings about flying. That's why whenever he tries to fly, he gets back to his flight and does not muster of courage to up the sky, to go into the sky, to dive, to have the pleasure of air while flying in the sky. And his parents convinced him, tried a lot of effort, but all in vain. In the beginning, he lost his courage. The bird seagull lost his courage, and he does not fly in the beginning, but at times he learned to muster of his courage and able to fly his first flight. And how this all happened in the chapter, let us see. So let's get started. And in this chapter there are lots of words which are new to you. Don't get in trouble. I'll explain all the difficult words given in this chapter. Okay, students? So let's get started. As I told you, this chapter is his first flight. The first chapter is his first flight, written by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty is the writer of this chapter. Before you read, since the earliest times humans have dreamed of conquering the skies, here are two stories about flying. Long centuries, बहुत centuries ago से ही ह्यूमन बीइंग के अंदर एक विशेष थी, एक डिज़ायर था कि काश हम भी आसमान में उड़ पाते हैं. उन विशेष को, डिज़ायर को राइट ब्रदर्स ने फुलफिल किया अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत से, अपनी थिंकिंग, अपने आइडियाज़ से दुनिया को आसमान में उड़ने की तरीका बताया, किस तरीके से, और इन्होंने ही इन्वेंट किया था एरोप्लेन. सो स्टूडेंट्स, तो शुरू से ही क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग आसमान में उड़ने की क्या नाम है ड्रीम करता था, और ये ड्रीम भी पूरा हुआ राइट ब्रदर्स के हेल्प से. यहाँ पर दो स्टोरीज दी गई हैं. फ्लाइंग के बारे में है. अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कन्कर हिज फियर. पहली स्टोरी क्या है, एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरता है स्टार्टिंग में, और कैसे वो अपने फियर को कन्कर करता है. इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और सेकेंड चैप्टर इसमें है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स.
एरोप्लेन जो है उसका जो पायलट है जो एरोप्लेन को उड़ा रहा है, उसकी जो एरोप्लेन है क्लाउड्स में लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो अपने घर, क्या वो सही से लैंडिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसके अंदर कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन इनको उससे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। The young seagull was alone on its ledge. His two brother and his sister had already flown away the day before. The young seagull है वो ledge मीन्स क्या होता है, इट मीन्स क्लिफ ऑफ अ माउंटेन। एक माउंटेन की जो चोटी होती है ना, क्लिफ होती है, उसी को ledge कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ledge। हॉरिजॉन्टल पार्ट भी होते हैं, कुछ इसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और वो उसका अपर पार्ट निकला होता है, वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। और उसके भाई, उसके दो हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही वहाँ से उड़कर चले गए थे, यानी कि इट मीन्स वो लेज से उड़कर कहीं और चले गए थे, लेकिन वो वहीं पर रह गया था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद हिम, वो वहाँ पर क्यों रह गया था, रीज़न यहाँ पर आपके सामने है। वहाँ पर इसलिए रह गया था क्योंकि वो उनके साथ उड़कर नहीं जा पाया था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. उसने स्टार्टिंग में कोशिश भी किया। ब्रिंक मीन्स होता है एज ऑफ द क्लिफ की जो चोटी की जो छोर है, जो एंड पार्ट को ही ब्रिंक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो जब वो जो क्लिफ की जो लेस था, वो क्या नाम, पहले वो क्या किया, थोड़ी दूर चलता गया, और जैसे ही उसके एज पर, उसके क्या नाम है, एंड पॉइंट पे जब वो पहुंचा, तो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। उड़ने से डरने लगा। उसने स्टार्टिंग में तो कोशिश की थी, लेकिन वो उड़ने से फिर डरने लगा जब वहां पर वो एज पर पहुंचा। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अच्छा, वो क्यों डर गया, क्योंकि उसके नीचे क्या था, सी थी, समुद्र था, माइल्स एंड माइल्स अवे, वो स्ट्रेच थी, दूरों तक वो फैली हुई थी, और उसे स्ट्रेचिंग की वजह से, उस समुद्र के डेप्थ की वजह से वो डर गया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स है सपोर्ट नहीं, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो बार डर रहा था और नर्वस हो रहा था, नर्वस फील कर रहा था। वो उसे लग रहा था कि जब वो ट्राई करेगा फ्लाई करने का, तो उसके जो विंग्स हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे उसे उड़ने में। That's why he was getting scared and left behind. फिर क्या हुआ, वापस आ गया वो इस लेज पर, और उस लेज पर वापस आने के बाद वहाँ पर एक होल था, उस लेज में एक होल बना हुआ था, और उसी होल में वो जाकर वो सोने के लिए चला गया। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके जो छोटे भाई थे, जिनकी विंग्स उनसे छोटे थे, जाहिर सी बात वो बड़ा था, वो छोटे थे, उसके जो भाई और बहन थे जो उससे छोटे थे, अगर छोटे होंगे तो उनकी विंग्स भी छोटी होगी,